Hello, my dear students. Welcome back to my channel Insightful Maths. In today's session, we are going to learn what is the compound interest and what is the difference between the compound interest and the simple interest, right? So this is going to be very interesting and an important topic. You are requested to watch the video till end, right? So that you are able to do the questions very much easily by your own. So let's begin the session. So talking about the topic, what is a compound interest? Before moving to the compound interest, let me just give you a quick recap. What is a simple interest that you must have learned in grade 7? For example, you have 500 rupees, right? For example, you have 500 rupees and you are giving it to somebody, right? We do not give the money for charity, of course, unless and until this is for charity. If you are giving the money with an intent of getting it back, so of course something extra you should be getting on it, right? तो अगर मैंने किसी को 500 rupees दिया है, तो मुझे जो मनी वापस मिलेगा, that should be something more than 500 rupees, right? That is something more than 500 rupees. That extra money that I will be getting is known as the interest amount. That is known as the interest amount. So what is the simple interest exactly? The formula, first of all, this for the simple interest is principal into rate into time divided by 100. This principal is this 500 rupees that either I have borrowed or I have given it to somebody. The money borrowed or the money given to somebody is the principal. Then R is the rate of interest. Rate of interest per annum, that means at what percentage the interest will be calculated. And this T is the time period in years. कि मैंने ये मनी कितने टाइम के लिए या तो लिया है या दिया है, एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 100. सो जो अमाउंट आपको होता है ना, जो आप अमाउंट आपको वापस मिलेगा, लेट्स से इन दिस सिनेरियो, दैट अमाउंट इज जो ओरिजिनल मनी आपने दिया था प्रिंसिपल plus the extra amount that you are getting simple interest. So amount that you will be getting back is principal plus simple interest. ठीक है? अब compound interest क्या होता है? Compound interest is basically the interest which is calculated on this principal as well as the interest which is accumulated on 1 year. अब आप एक example समझो. For example, I have given, let's take this example only. I have taken 500 rupees from somebody. This is my principal amount. The rate of interest is 10% and let's say the time period is 1 year. मैंने किसी से 500 rupees लिए हैं at 10% pay for 1 year. So how much money I need to return back after a year? So this simple interest I need to pay, that is principal. Sorry, this is principal. Here is 500 rupees only. I have to write 500. This is the principal. Rate is 10. Time is 1 divided by 100. Zeros and zeros is cancelled and 5 into 10, that is 50, and this is in rupees. तो मुझे जो पैसे वापस करने होंगे, that is the original amount 500 and this extra 150. So the amount I need to return back is rupees 550. अब ये जो आपका अमाउंट है ना, अगर आपने ये मनी 2 साल के लिए लिया होता, तो मैं टाइम पीरियड यहाँ पे सीधा 2 कर देती और मैं सिर्फ प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करती. ठीक है? आई एम गिविंग टेकिंग द सेम एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. लेट्स से द टाइम ड्यूरेशन इज 2 years हियर. ठीक है? मैंने 2 साल के लिए अगेन 500 रुपीज लिए हैं. आई नीड टू चेक अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है तो मुझे कितने पैसे देने हैं, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता तो मुझे कितने पैसे देने हैं. सिंपल इंटरेस्ट दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट. टाइम पीरियड इज 2 years नाउ. हमने 2 साल के लिए लिया है एंड इट इज डिवाइडेड बाय 100. जीरोस आर कैंसल. 5 into 10 is 50 and 50 into 2 is 100 rupees. ठीक है? तो मुझे 500 के अलावा 100 rupees और एक्स्ट्रा देना है 2 साल में. So after 2 years the amount I need to pay is original one 500 plus 100 rupees extra, that is equal to rupees 600. इतनी बात समझ में आ गई? ये हमें ऑलरेडी पता है how to calculate simple interest. अब बात करते हैं if the interest in the similar condition, यही एग्जाम्पल, if the interest to be given
एनुअली एंड इट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। फर्स्ट ईयर के एंड में हमने अभी देखा था, फर्स्ट ईयर में इट इज एग्जैक्टली द सेम, चाहे मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं, द वैल्यू रिमेन सेम। एक साल में हमारा अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा था 50 रुपीज आया था। सो आफ्टर 1 ईयर देखो, ओरिजिनल प्रिंसिपल वॉज 500 रुपीज, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो, टाइम पीरियड 1 ईयर, इंटरेस्ट हमारा बना था 50 रुपीज, सो द अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज रुपीज 550। ठीक है, एक साल के एंड में ये जो आपका अमाउंट आया है, विच इंक्लूड्स योर प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, दिस अमाउंट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर नाउ। अब नेक्स्ट ईयर का आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, उसमें आपको ये वाला इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना है। हमें जो नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट देना है एक साल और का, वो सिर्फ 500 पे नहीं देना, वो इस इंटरेस्ट पे भी देना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट। लेट अस डू द कैलकुलेशन। सो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, अब दूसरा साल शुरू हो गया एक साल के एंड में फाइनल अमाउंट वाज 550। अब नाउ दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, एक साल हो चुका ना, दूसरा साल बचा है, टाइम पीरियड इज अगेन 1 ईयर and the rate of interest is 10%. Let us calculate for another 1 year. So interest is principal into the rate into time divided by 100. 110 up and down is cancel. 55 into 1 is 55. तो जो हमारा अब ओरिजिनल प्रिंसिपल से शुरू किया था 550, उसमें 55 इंटरेस्ट और आप ऐड कर लो, 550 एंड 55, दिस इज 5 10 605। तो टोटल अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, 2 साल के एंड में आपको कितने पैसे वापस देने हैं, 605। और देखो जब ये सिंपल इंटरेस्ट का केस था, देन ओनली 600 रुपीज वर टू बी रिटर्न बैक। सो एवरी टाइम विच अमाउंट इज बिगर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपको अपना पैसा इंटरेस्ट पे देना है, तो आप किस पे दोगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट? इफ यू नीड टू गिव द मनी, चूज कंपाउंड इंटरेस्ट सो दैट यू गेट मोर इंटरेस्ट। और अगर आपको पैसे बोरो करने हैं, लेट्स से यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, तो आप किस पे लोगे, ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट वेयर यू नीड टू पे लेसर, इट इज द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज greater than the simple interest. So the difference is, in the case of simple interest, interest is charged flat, 10 the percentage on the given time period only on principal. But in the case of compound interest, it is calculated on the principal as well as the interest amount. Right? So this another statement means the same thing that I have just told you. Moving on to the next slide now. What are the uses of compound interest? There are so many examples where this compound interest is being used. For example, the most of the transactions in the banking industry. अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए अभी 5,000 रुपीज है, राइट, वी गेट द इंटरेस्ट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, राइट, आपका हर 3 महीने में क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। For example, interest credited in your account in 3 months. After 3 months, the interest given to you is 100 rupees. आपके अकाउंट में unless and until you take the money out, कितने पैसे हो गए? That is 5,100. अब अगले 3 महीने में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, that is on this 5,100. जो भी फाइनल अमाउंट होगा, अगेन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट, right? So this is used in the banking sectors, financial sectors. Other applications are also there. For example, increase and decrease in population. जब population बढ़ती है, it is always the percentage of the previous one. For example, if I say in 2011, I'm just taking a rough figure for you to understand. For example, if I say in 2011, the population was 10 lakh, it was not just a figure for you to understand. And if I say the population is increasing at the rate of 2%, तो पहले आप 10 लाख का 2% इंक्रीज करोगे, दैट इज द पॉपुलेशन फॉर 2012। हमने 2% इसमें ऐड कर दिया। अब लास्ट में जो 2012 में वैल्यू आएगी, अगला परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस वैल्यू। सो इट इज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, principal and interest getting together for getting the final amount, and amount is becoming the principal for the next session.
ठीक है, तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज है पॉपुलेशन में, द कॉन्सेप्ट यूज्ड इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अगेन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, अगेन इट इज कंपाउंडेड. राइज और एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू, अगर चीजों की वैल्यू हर साल 10%, 11%, 20% बढ़ रही है या कम हो रही है, appreciation and depreciation, again the concept used here is the compound interest only. Let us see now the formula for compound interest. It is amount is equal to P stands for principal bracket 1 plus rate upon 100 whole to the power n. अभी देखने में टेक्निकल लग रहा होगा, इट इज एन इजी वन, कोई मुश्किल नहीं है. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. हम जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, फॉर्मूला गिव्स अस द इंटरेस्ट डायरेक्टली, दैट इज प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100. ध्यान दो, अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालना होता है ना, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इस फॉर्मूला से मुझे अमाउंट ही डायरेक्टली पता चल रहा है. तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट एंड प्रिंसिपल. तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इस फॉर्मूला से जो भी अमाउंट मिलेगा, सो दैट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट. This formula is just giving you the value of the amount, not the compound interest. There are certain technicalities in this formula which has to be understood now at this level. Uske baad it is just inputting the values and getting the solution. Correct? P bracket 1 plus rate upon 100 whole to the power n. ये जो R है ना rate, it is the annual rate of interest. Annual मतलब ये rate एक साल का rate given है आपको. कैपिटल N मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स. समझो इसको ध्यान से, दिस इज द नंबर ऑफ ईयर्स. नाउ ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ साल के एंड में कैलकुलेट होगा. इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन कि आपने जो डील किया है, आपने जो इंटरेस्ट पे दिया है या लिया है, इट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली. अब आप एक समझो, 1 ईयर, अगर मैं एक ईयर की बात करती हूँ, इट हैज 12 मंथ्स. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली, तो आपको जो ईयर दे रखा है ना, एन की वैल्यू विल गो द सेम. अगर मैं कहती हूँ इट इज कंपाउंडेड, दैट मीन्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली. हाफ ईयरली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसका मतलब हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स. हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड. देखो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल था, 6 महीने में जितना इंटरेस्ट ऐड हुआ, हमने प्रिंसिपल में वो इंटरेस्ट ऐड किया. नाउ दिस विल बी माय न्यू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. समझ आई? अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स हैव वी कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट, ये जो एन है, एन, दिस मीन्स बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट. एक साल होता अगर ये, तो हमने एक ही बार कैलकुलेट किया. अगर मैं इसको एक ही साल की अभी बात कर रही हूँ, इफ इट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, हाफ ईयर एंड हाफ ईयर, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 टाइम्स. एक 6 महीने के बाद यहाँ पर, एक 6 महीने के बाद यहाँ पर, एन की वैल्यू आएगी 2. ठीक है, एक और चेंज इज देयर, ये जो रेट है ना, दिस इज एनुअल, ये एक साल का रेट है. तो अगर मैं 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ, 6 मंथ्स इज हाफ ऑफ 1 ईयर, तो आपका हाफ ईयरली में रेट को भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. राइट? देखो, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एंड आई एम कैलकुलेटिंग इट फॉर 2 years. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फॉर 2 years, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बता रखा है कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे ना, इट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन, इट विल बी डन हाफ ईयरली. अब आप देखोगे 2 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, एक साल में कितनी बार हाफ करोगे, दो, तो 2 years में कितना होगा, वी आर डूइंग द डबल ऑफ द सेम थिंग, सो इट शुड बी 4. देखो, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, 6 months, 6 months, half yearly, 6 months, 6 months, half yearly. So how many half years are there in 2 years? 4. तो हम क्या करेंगे हाफ ईयर के केस में, जो भी नंबर है बस उसको डबल कर दो. सो आपका जो n का वैल्यू है, ये वाला n, इट इज अकॉर्डिंग टू 2, इट इज 4. ठीक है,
हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट को भी हाफ करना पड़ेगा। ये 20% एक साल का है, तो 6 महीने का क्या होगा, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 एंड इट इज 10%। तो आप अपनी कैलकुलेशन में रेट को लोगे 10% और एन की वैल्यू लोगे 4 इफ इट इज 2 years। दोबारा देखते हैं, अगर इट इज द सेम सिनारियो, इफ आई हैव टू कैलकुलेट लेट्स से फॉर 5 years, ठीक है, for 5 years, again I'm giving you the values. Rate of interest is 20%, time period is 3 years, and let's say it is calculated half yearly. Now please mute the video, think yourself and comment what is your answer. Are you able to get the value of R and N which has to be used in this formula? It has to be compounded half yearly. ठीक है, हाफ ईयरली में एक चीज कंफर्म है, ये एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप हाफ हाफ ईयर का ले रहे हो, इसको हाफ करना पड़ेगा। सो 20 डिवाइडेड बाय 2, रेट आपको लेना है 10%। 3 साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, यू हैव टू जस्ट डबल इट अप। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर को हाफ किया 2 बार, इसको हाफ किया 2 बार, इसको हाफ किया 2 बार, सो 3 इज कन्वर्टेड टू 6 नाउ। एन की वैल्यू आप लोगे 6 एंड दैट विल बी, and then input here, that will be your answer. अभी हमने बात की हाफ ईयरली ही। दिस कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड क्वार्टरली ऑल्सो। अब ये क्वार्टरली क्या होता है, क्वार्टर मीन्स 3 month, ठीक है। आप देखो 1 year में 12 months होते हैं ना, 3 3 3 एंड 3, ये एक साल है। दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट कर रही हूँ, हर 3 महीने के बाद कैलकुलेट कर रही हूँ, तो एक साल में कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो अगर माई टाइम पीरियड इज 1 year एंड क्वेश्चन सेज आई एम कैलकुलेटिंग क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स हर 3 महीने के बाद, तो एक साल में मैंने कितनी बार कैलकुलेट किया है, 1 2 3 एंड 4। इस एन की वैल्यू हो गई है 4। सेम कॉन्सेप्ट, जब हम हाफ ईयरली ले रहे थे हम 6 months की बात कर रहे थे, 6 month हियर एंड 6 month हियर, तो टाइम एक साल कितने में स्प्लिट हो जाता है, 2 में। तो जब क्वार्टरली कैलकुलेट होगा, आप उस टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। जब ये हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, यू जस्ट नीड टू डबल इट अप, करेक्ट। अब रेट का हम क्या करें, ये जो रेट था ये एक साल का था, राइट, 1। नाउ दिस रेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 3 4। तो रेट आपका जो भी है, इफ लेट्स से इट इज 20% दिस ईयर, इसको भी आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये देखो पूरे साल का, यहां से लेके यहां तक पूरे साल का 20 है, स्प्लिट इट इन 4 पार्ट्स, 20/4 आपको लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ठीक है। व्हेन यू डू द क्वेश्चंस इट विल बिकम मच मोर अंडरस्टूड टू यू, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेरिवेशन। ये जो फॉर्मूला हमारा है, प्रिंसिपल इज इक्वल, दिस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 होल टू द पावर n। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रिंसिपल 1। प्रिंसिपल 1 मीन्स ओरिजिनल प्रिंसिपल को मैं p ले लेती हूँ, ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल टाइम, हम एक एक साल का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1। सिंपल इंटरेस्ट 1 मीन्स इट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये पता है हमें ऑलरेडी। सो अमाउंट 1, एक साल के एंड में अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही है ना। प्रिंसिपल इज p, सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी निकाला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, एक साल की बात कर रहे हैं, तो t की वैल्यू 1 हो गई, लेट मी रिप्लेस दिस t बाय 1। हम एक ही साल की बात कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू ऑफ t हियर एज 1। अब आप ध्यान से देखो, p एंड p, दिस इज कॉमन, आई एम टेकिंग p आउटसाइड, इनसाइड द ब्रैकेट ये वाला p बाहर चला गया, 1 प्लस ये वाला p भी बाहर कॉमन में है, अंदर क्या बचा, r इंटू 1 इज r अपॉन 100, एक साल के लिए रेज टू द पावर 1, कुछ नहीं है ना, पावर 1। दिस इज अमाउंट 1, इज इट मैचिंग विद द फॉर्मूला। अगर टाइम पीरियड रेट मेरे पास है, n की वैल्यू एक साल है, वैल्यू आ रही है, इट इज मैचिंग। लेट अस यूज द सेम इफ आई हैव टू कैलकुलेट फॉर 2 years।
ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको एक चीज पता है, सेकेंड ईयर में जो आपका अमाउंट होता है यही आपका प्रिंसिपल होता है ना, राइट। सो सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, देखो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है, अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, प्रिंसिपल टू प्लस सिंपल इंटरेस्ट टू, ठीक है ना। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हम यहाँ देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल टू इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही होगा। अब टाइम पीरियड हम सेकेंड ईयर एक ही साल के लिए दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, इस टी को मैं 1 से रिप्लेस कर सकती हूँ। सो सिंपल इंटरेस्ट टू, दिस इज प्रिंसिपल टू प्लस रेट, सॉरी इनटू रेट अपॉन 100, अमाउंट टू, साल के अंत में जो अमाउंट आएगा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल टू प्लस सिंपल इंटरेस्ट टू, इट इज प्रिंसिपल टू। अब ये सिंपल इंटरेस्ट टू क्या है, प्रिंसिपल टू इंटू आर अपॉन 100। अगेन अगर मैं प्रिंसिपल टू कॉमन लेती हूँ, ये बाहर चला गया 1 प्लस ये ऑलरेडी बाहर चला गया, इट इज रेट अपॉन 100। यहाँ तक समझ आया। अब आप देखो ये जो प्रिंसिपल टू है आपका, ये वाला प्रिंसिपल टू ये कैसे आया था, प्रिंसिपल टू वॉज दिस वन ओनली, जो आपका अमाउंट होता है पहले साल के अंत में जो अमाउंट आता है यही तो प्रिंसिपल बनता है नेक्स्ट ईयर का। आप देखो फर्स्ट ईयर के एंड में जो मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ये अमाउंट है ना, दिस अमाउंट गोज एज द प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इसको जो अमाउंट 1 है यही तो प्रिंसिपल 2 है। तो इस प्रिंसिपल 2 की जगह अगर मैं इस A1 की वैल्यू डाल दूं, देखो हाउ विल इट लुक लाइक, this is equal to, now I am replacing principal 2 by amount 1, principal into 1 plus rate upon 100, ये मैंने इसको रिप्लेस किया है। इसके साथ साथ ये वाला ब्रैकेट ऑलरेडी देयर विच इज 1 प्लस रेट अपॉन 100। तो देखो प्रिंसिपल ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 प्लस आर अपॉन 100, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, सेम नंबर अगर मैं x इंटू एक्स करती हूँ आंसर कम्स एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सेम नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर 2। देखो 2 साल के लिए कैलकुलेट किया था पावर 2 बन गई। In the similar manner, if I calculate for the third year, power 3, fourth year, power 4, right? It's an interesting topic. Now let us do the questions based on this one. A sum of money, 10,000 rupees, is borrowed by Rahul for 2 years at the interest of 10% compounded annually. सबसे आसान क्वेश्चन है, it is compounded annually. साल में कोई चेंजेस खास करने नहीं होते, you need to find the compound interest and amount he has to pay at the end of 2 years. ध्यान रखो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों चीजें निकालनी है, तो पहले हमको अमाउंट ही निकालना पड़ेगा। अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर n। अमाउंट इज प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000, 1 प्लस रेट है 10% होल टू द पावर, कितने साल के लिए आपने लिया है, इट इज फॉर 2 years, पावर इज 2, दिस इज 10,000। अब यहाँ ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी थोड़ी लंबी हो जाती है। इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 10, 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 1 बाय 10, 1 का मतलब 1 बाय 1 होता है, वी कैन ऐड ओनली द लाइक फ्रैक्शंस। इसको अभी आपको ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आना चाहिए। एलसीएम ऑफ 1 एंड 10 इज 10, तो पहले वाले का डिनोमिनेटर मुझे 10 बनाना पड़ेगा। सो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 से नीचे करो, इट इज कन्वर्टेड टू 10,000 इन द ब्रैकेट 10 प्लस 1, दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, पूरे का स्क्वायर 10,000, 10 प्लस 1 इज 11, अब ये बन गया 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। ये बात समझ आई ना, 10 प्लस 1 बाई 11, इसको पूरे को आप 11 भी तो लिख सकते हो, तो 11 बाई 10 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 एंड 10 इंटू 10। 1 0 एंड 1 0 अप, 1 0 एंड 1 0 डाउन, इट इज कैंसिल, 11 इंटू 11 ये होता है 121, और यहाँ पे मेरे पास अभी 2 0 बची हुई है, 2 zeros here। तो आपको अभी क्या मिला, 12,100 आपका ये अमाउंट आया है। अमाउंट इज रुपीज
12,100। हम कंपाउंड, ये हमने फॉर्मूला किसका यूज किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक चीज तो हम निकाल चुके हैं ना, अमाउंट पूछा था, दैट इज ₹12,100। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 12,100, प्रिंसिपल था हमारा 10,000। सो 12,000 में से 10,000 माइनस किया 2,100, द डिफरेंस इज 2,100 एंड दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। इजी, इट वाज जस्ट एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको दिक्कत अगर कंफ्यूजन आती है ना, इस वाले स्टेप पे आती है। तो आप क्या करो, अगर आपको डेसिमल नंबर अच्छा लगता है, आप अंदर ब्रैकेट के डेसिमल नंबर बना के स्क्वायर ले सकते हो, और मे बी यूज इट एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, let us move to another question. Okay, this much this one we have already done. The population of a town has a constant growth of 4% PA means per annum. If the present population is 62,500, what will be its population after 2 years? देखो, दोबारा इस सालों की बात करी है, हाफ ईयरली क्वार्टरली की कोई बात नहीं करी है। मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन, इंक्रीज, डेप्रिसिएशन, इन सब में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक चीज आप रखना है याद, अगर वैल्यू डाउन जा रही है तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट इज P इंटू 1 प्लस डेप्रिसिएशन व्हेन द वैल्यू इज गोइंग डाउन। इस प्लस की जगह बस हम माइनस लेते हैं, 1 माइनस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर n। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, यू विल गेट टू नो। जस्ट प्लस की जगह माइनस, इफ समथिंग इज गोइंग डाउन, पॉपुलेशन कम हो गई तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, तो यू हैव टू टेक अ माइनस हियर। Okay, so original population is 62,500. We have to find the final population. Final value क्या होता है, amount। हमें इसमें amount निकालना है, final value। Principal into 1 plus r upon 100 whole to the power n. Principal is the original value, which is 62,500 bracket 1 plus rate is 4%। 4/100 कितने सालों के लिए निकालना है, 2 years, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन। ऐसा क्यों, अगर मैं सिंप्लीफाई नहीं करती हूँ ना, डिनोमिनेटर 100 रहेगा, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर कटिंग द जीरोस और मे बी पुटिंग द डेसिमल। इट विल जस्ट मेक माई कैलकुलेशन ईजियर। अगर आपको सिंप्लीफाई करके करना है वैसे भी कर सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर कैलकुलेशन। ओके, सो दिस इज 62,500 ब्रैकेट, इसको मैं बना दूंगी 100/100 लाइक फ्रैक्शन। 100 plus 4, it is 104 and denominator is 100 पूरे का square. Again, 62,500 into 104/100 का square मतलब 104/100 into 104/100. Okay. अब now the real patience check is there कि हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी होगी। अगर हमने कैलकुलेशन में एरर किया then whole thing will go waste. Let us try to simplify it now. 2 zeros and 2 zeros got cancelled. अब मैं सीधा सीधा क्या करूंगी, I will just take the product of these numbers and put the zeros. These zeros I will be utilizing for putting the decimal. आपको अगर simplify करके करना है आप ऐसे भी कर सकते हो। All right, 625 into 104. 625 into 104. 5 into 4 is 20. 4 into 2 is 8 and 2 is 10. 6 4s are 24 and 1 is 25. 0 multiplied by any number is 0. I'll put myself. 1 multiplied by any number is just the number 625. 5, 2 and 6. So this is 0, 0, 0, 1, 2 and 1, 3, 4, 5. 65,000। ठीक है, अगर अभी देखो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 625 एंड 104, आई एम गेटिंग 65,000। प्रोडक्ट से आया, एक 104 अभी भी है मेरे पास एंड इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 100। समझ आई बात, 100 अभी भी है। अभी मैं क्या करूंगी, आई एम जस्ट कैंसिलिंग द जीरोस नाउ। 2 zeros अप, 2 zeros डाउन, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 650 मल्टीप्लाइड बाय 104। रियल पेशेंस चेक। ओके, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ बेसिक मल्टीप्लीकेशन। लेट अस कैरी ऑन विद इट। 650 to be multiplied now with 104.
650 multiplied by 104. 4 into 0 is 0. 5 into 4 is 20. 6 into 4 is 24 plus 2 is 26. 0 multiplication will lead you 0 only. Multiply by 1 will be the same number 650. 0, 0, 6, 5 and 2, 7 and 6. मेरा आंसर क्या आया? 67,600. This is a population. It is just a number. हमसे अगर पूछा होता ना पॉपुलेशन कितना बढ़ गई, दैट मीन्स द कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा, द डिफरेंस, तो मैं क्या करती, ओरिजिनल वाला 62,500 और इसका मैं डिफरेंस ले लेती। हमसे सिर्फ इतना पूछा है 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, द फाइनल वैल्यू, ओनली अमाउंट इज बीइंग यूज्ड, सो दैट इज योर आंसर। द फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर 2 years compounded, of course it is a compound interest case, population increase, decrease, depreciation, appreciation, so final answer is 67,600. Moving on to the next question now. The cost of a new washing machine is rupees 12,000. ठीक है, एक washing machine की cost is 12,000. The value is depreciating. Depreciation means the value is going down every year at the rate of 10%. What will be the value after 3 years? ध्यान से देखो, साल के हिसाब से yearly the value is going down, percentage given है, depreciation given है. Depreciation value कम हो रही है तो हम plus तो कर ही नहीं सकते, it has to be something minus. फाइनल वैल्यू पूछिए, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू आफ्टर 3 years, तो अमाउंट आपसे पूछा है, यूज दिस फॉर्मूला, अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1, एप्रिसिएशन में प्लस लेते हैं, वैल्यू नीचे जा रही है, इट इज माइनस, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, 1 माइनस आर अपॉन 100 होल टू द पावर n. नाउ अमाउंट इज ओरिजिनल वैल्यू 12,000 into 1 minus the rate is 10 upon 100, कितने सालों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 years. 0 अप 0 डाउन कैंसिल, ये हमने अभी भी किया था सिमिलर, 10 by 10 बनाया, सो 12,000 ब्रैकेट के अंदर 10 minus 1 is 9, प्लस नहीं है माइनस है, 10 minus 1 is 9, डिनोमिनेटर 10, इसकी पावर 3. पावर 3 का मतलब this number is getting multiplied by itself 3 times. So this is 12,000 into 9 by 10, 9 by 10 and 9 by 10. याद रखना, a lot of patience is required for these calculation. Do not lose heart that इतना सारा numbers multiply करना पड़ेगा. That is absolutely fine. Okay, 3 zeros up, 1, 2 and 3. They got cancelled. 9 into 9 is 81. Let us do like this. हमने इन दोनों को multiply किया. 12 9s are 108. इनको मल्टीप्लाई किया. फाइनली यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स एंड दैट विल बी द फाइनल वैल्यू. अब देखो ये डेप्रिसिएशन का केस है तो फाइनल वैल्यू कब आना चाहिए ना, लेट्स सी इफ वी आर ऑन द राइट ट्रैक. 108 मल्टीप्लाइड बाय 81. 108 into 1 is 108. 8 into 8 is 64. 6 here and 8 ones are 8. 8 4 6 and 1 7 8. फाइनल वैल्यू आपका कितना आया, 8748. Original value was 12,000 rupees and now the final value is 8748. कम हो गई ना, that's the final answer. It's very easy, just the application of the basic concepts. All right, moving towards the one of the most important portion that I want everybody has to pay attention to. Again, it's a compound interest on rupees 5,000. Let us write it down, the given information. Principal amount rupees 5,000. इस पे हमें कैलकुलेट करना है. Rate of interest is 5% per annum. Annual rate of interest is 5%. It is to be calculated for 3 by 2 years. Time period is 3 by 2 years. But the interest is payable half yearly. Half yearly का मतलब compounded half yearly. Compound interest is निकालना है ना half yearly. मैंने क्या बताया था, हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, जो टाइम पीरियड होता है, देखो अगर ये 1 ईयर होता, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, हमने क्या किया डबल. अगर ये 2 ईयर्स होता तो 2 ईयर में 4 होते हैं, तो जितना भी ईयर होता है ना आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू द फाइनल वैल्यू ऑफ टी. हमारा टाइम पीरियड है 3 by 2, लेकिन ये हाफ ईयरली है, मुझे इसका डबल करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 and 2 कैंसिल, टी की वैल्यू आ गई 3. नहीं समझ आया? If I divide 3 by 2, 2 ones are 2, remainder 1. हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, 1 and a half year.
इतनी बात समझ आई? 3/2 का मतलब होता है 1.5 ईयर। 1.5 ईयर का मतलब 1 साल, 1 ईयर पूरा, और दूसरे ईयर का आधा साल। अब आप देखो इस पूरे ईयर में हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर पॉसिबल, हाफ ईयर एंड हाफ ईयर। दूसरा में तो पहले से ही हाफ है, 1, 2 एंड 3, इट गोज लाइक दिस। जितना भी टाइम पीरियड है बस उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन द केस ऑफ हाफ ईयर। अब ये हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो रेट को भी तो हाफ करना पड़ेगा। अभी रेट 5 है, जस्ट राइट इट एज 5/2। अगर डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल बन जाएगा, अवॉइड यूजिंग डेसिमल। करेक्ट? ये चीज समझ आ गई? लेट अस गो फॉर द कैलकुलेशन नाउ। टाइम पीरियड हियर इज 3 नाउ, हमें टाइम की वैल्यू 3 लेना है बिकॉज 3/2 into 2 is 3. So I'll just write the values here. T I have to use is 3. फाइनल अमाउंट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले अमाउंट से शुरू करेंगे। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर n। प्रिंसिपल इज 5000, 1 प्लस रेट एज अ फ्रैक्शन 5/2, 5 ऊपर 2 नीचे, 5/2 नीचे 100 भी है ना, दैट विल बी एडजस्टेड अलोंग विद दिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेट एक फ्रैक्शन है तो दैट न्यूमरेटर न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में रहेगा। इफ एनीथिंग एक्स्ट्रा इज देयर दैट विल बी एकोमोडेटेड अलोंग विद द डिनोमिनेटर। होल रेज टू द पावर, हमें कितने बार कंपाउंड करना है? 3 बार कैलकुलेट करना है। पावर इज 3, राइट? 5 2s are 10 along with a 0. So this is now converted to 5000 into 1 plus 1 upon 2 into 20. Is it 40? Whole to the power 3. अब डिनोमिनेटर सेम चलना है, 40 अप 40 डाउन, क्योंकि 40/40 1 ही होता है। सो दैट इज 5000 into 40 plus 1. It is 41 upon 40 पूरे की पावर 3। पावर 3 का मतलब आई हैव टू रिपीट द सेम नंबर्स 3 टाइम्स। समझ आ गई इतनी बात? नाउ 1 2 and 3, 3 zeros up, 1 2 and 3, 3 zeros down, ये भी कैंसिल हो गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोस्ट टीडियस पार्ट। 5 into 41, 41 into 41 divided by 4 into 4 into 4, 4 into 4 is 16, 16 into 4 is 64. That is the task now. अब आपको ये कैलकुलेट करना है। जरूरी नहीं है आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो अप्रोक्स एग्जैक्ट आंसर आए, कभी कभी इट इज लाइक अ डेसिमल नंबर जो आपका डिवाइड होता चला जाएगा। सो यू जस्ट नीड टू टेक ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर दैट। ठीक है, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। इफ वी मल्टीप्लाई, लेट अस सी व्हाट वैल्यू डू वी गेट। I request everyone has to mute the video, compute it yourself and put the value what you are getting. First of all, I'm multiplying these two numbers. 5 into 41. 5 into 1 is 5. 5 into 4 is 20. आ गया product. Now 41 into 41. 41 into 1 is 41. 4 ones are 4. 4 fours are 16. This is 1. 8. 1681 आ गया। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास नंबर क्या थे? 541, 41 into 41। इन दोनों का निकाला ये प्रोडक्ट, इन दोनों का निकाला ये प्रोडक्ट, इन्हें मल्टीप्लाई करना है ना। अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। 205, 5 ones are 5, 8 5s are 40, carry 4, 6 5s are 30 plus 4 is 34, 5 ones are 5, 6 7 8. Multiplication with 0, everything vanished. 2 into 1 is 2, 8 2s are 16, 6 2s are 12 and 1 13, 2 1s are 2 and 3. 5 0 8 14, this is 4 and 3. कितना बड़ा नंबर? अगेन दिस इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को क्या करना था? दिस प्रोडक्ट हैज टू बी नाउ डिवाइडेड विद 64। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आपको 64 से डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी दैट इज योर अमाउंट। ठीक है, उस अमाउंट में से अगर आप ये 5000 माइनस कर देते हो दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज डन। I want everybody now, rather than me solving the things, please solve this, divide this, have patience, divide, find what is the final answer, and please write in the comment option what is your amount and what is your compound interest after solving the question completely.
right? I hope you like this topic and you are gaining the confidence. In the upcoming videos, we'll be doing more questions based on this compound interest topic. If you have liked the topic, please don't forget to like and subscribe and share with your friends, right? And I'll be waiting for these answers. Thank you so very much for watching, King. Take care.